Bismillahirrahmanirrahim, and we are again on the new batch and the new day of a PTE exam. And in PTE exam, remember that there are total 20 questions in exams. So if we talk about the exam, PTE is a set of 20 questions in total. So how many questions will be there in exam? 20 questions. And these 20 questions are to be done करने होते हैं students ने in 2 hours to 2.15 means 2 hours 15 minutes. So time allocated for exam, it varies from 2 hours to 2 hours 15 minutes in total. So in exam, there are total 20 questions and all 20 questions are to be done by the students in 2 hours and 2 hours 15 minutes maximum. So it ranges from, the time ranges from 2 hours to 2 hours 15 minutes. ये जो 20 क्वेश्चंस है ना, इन 20 क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है टोटल 4 एग्जाम्स में. So 20 questions are distributed in 4 exams. The first exam that comes up or the 20 questions की जो bifurcation है, इसको इस तरह से देख लीजिए. The 5 questions are for the speaking exam. So now we are going to connect 20 questions according to the exam distribution. So 20 questions में जो पहले 5 सवाल हैं, ये जो 5 सवाल हैं वो किसको दिए गए? Those are given to your speaking exam. Okay. Number 1. Number 2, out of these 20 questions, 2 questions are given to the writing exam. So now we are on 7 questions. Out of 20, 5 questions for speaking, 2 questions for writing. So how many questions have been done? 7 questions have been done. Okay. So now after writing, we enter into the next paper or the next module, and that is next exam is the reading exam. For reading में कितने question होंगे? 5 in total. So now we are on 5 speaking, 2 writing, 5 reading. It makes total 12 questions. And how many are left? 8. So 8 questions are given to the listening exam, और इस तरह से PTE के 20 questions जो हैं उनको हम total करते हैं. So what do we mean by PTE? PTE exam, which is Pearson Test of English. This Pearson Test of English is a set of total 20 questions in total, which are divided into 4 sections. These 4 sections are: number 1, speaking, writing, reading, listening, 5, 2, 5, 8. Is it done or not? The first thing is clear. What is PTE? Is the Pearson Test of English. How many questions are total? 20. How many exams there here in PTE? There are 4 exams: speaking, writing, reading, listening. And 20 questions are bifurcated in a way: speaking 5, writing 2, reading 5, listening 8, 5, 2, 5, 8. It makes 20 questions in total in your PTE exam. So पहली चीज जो हमने समझ ली वो क्या है कि PTE में 20 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने करना है, जो 4 एग्जाम्स में डिवाइडेड है. पहला एग्जाम कहलाएगा स्पीकिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा रीडिंग, चौथा लिसनिंग. 5, 2, 5, 8. It is the total PTE question bifurcation. हमारा जो PTE का टोटल एग्जाम है, this exam is an exam of 360 numbers. The total marks or the total score, आप कुछ भी कह लें, the total score in PTE exam is how much? It is 360. कितने नंबर है टोटल? 360. So how many marks are there? 360 marks are there. So अगर हमने टोटल PTE के 20 क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है 4 एग्जाम्स में, तो हम एक लेमैन की अप्रोच से ये कह सकते हैं कि ये जो 360 नंबर हैं ये कितने क्वेश्चंस के होंगे? 20 क्वेश्चंस के. इज इट अराउंड? सो देयर आर टोटल 360 क्वेश्चंस एंड these are for 20 questions. So हमने recap भी कर लिया. So PTE एक step हम आगे जा रहे हैं. So PTE is an exam of 20 questions and all 20 questions are having 360 marks in total. Is it fine? So now, how many exams are there in PTE? In PTE, there are 4 exams. Number 1 is speaking, writing, reading, listening. So now, these 360 marks, 360 marks in total are divided into 4 exams as well. अगर PTE के 4 एग्जाम है तो ये 360 नंबर डिवाइडेड होंगे 4 सेक्शंस में. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये 360 नंबर डिफरेंट एग्जाम्स में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाइफरकेट ये डिवाइड नहीं हुए हैं, बल्कि ये 360 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सारे एग्जाम्स में. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँ that the speaking exam have 90 marks, the writing exam have 90 marks,
the reading exam have 90 marks and the listening exam is having 90 marks as well. So एक step और आगे चला गया. Step number 1 क्या था मेरा? PTE क्या है? Pearson Test of English. Step number 2 क्या था? कितने सवाल हैं PTE में? जवाब मिला 20 क्वेश्चंस है. तीसरा सवाल ये था कि PTE में ओवरऑल कितने एग्जाम्स हैं, तो मैंने उसका जवाब दिया, हाउ मेनी एग्जाम्स आर देयर? 4 एग्जाम्स, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग. चौथा सवाल ये था कि इन 20 सवालों में से हर एग्जाम में कितने कितने सवाल हैं, तो सर ने बता दिया स्पीकिंग 5, राइटिंग 2, रीडिंग 5, लिसनिंग 8. ओके. अगला सवाल ये था कि पीटीई में टोटल स्कोर कितना है, तो उसका जवाब मैंने दे दिया 360. अब ये 360 कैसे डिवाइडेड है? मैंने बोला कि क्वेश्चंस के हिसाब से डिवाइडेड नहीं है, बल्कि ये सेक्शन के हिसाब से डिवाइडेड है. सो योर exam 1 speaking is of 90 marks, exam 2 of writing is of 90 marks, exam 3 of reading is of 90 marks, exam 4 of listening it is of 90 marks as well. So how many marks are of PTE? 360. कैसे? 90 90 90 90. So our 490 makes total 360 questions. Is it fine? अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं. हम एक स्टेप जब आगे जाएंगे तो हमें एक बात अपने जहन में रख के जाना है. मैं एक समरी बना रहा हूं. So have a quick recap. Have a quick recap. PTE 20 questions. 20 questions. PTE 360 marks. 4 exams: speaking, writing, reading, listening, and all 4 exams are having the same number of questions weightage, and that weightage is 90, 90, 90 and 90. It is what I have told you. सर ने बताया है speaking 5 questions. सर ने बताया है writing there are total 2 questions. सर ने बताया है the reading there are reading and it is 2 questions. I will talk about the reading exam. The reading exam has the 5 questions. And then sir ne ye bataya hai how much of the listening. The listening exam has again the 8 questions, and in this way I have given you a quick recap to summarize your knowledge about the PTE exam in a ordinary note. I mean like a layman. Okay. अब एक बात को याद रखिए, पीटीई में ऑल क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ इक्वल मार्क्स. एक जाहिर है बात, मिसाल के तौर पे अगर आपके स्पीकिंग के नंबर भी 90 हैं और 5 सवाल हैं, और लिसनिंग के नंबर भी 90 हैं और उसके 5 सवाल हैं, तो इसका मतलब है कि ऑल क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ इक्वल मार्क्स. सो अ फ्यू क्वेश्चंस आर हैविंग मोर मार्क्स, अ फ्यू क्वेश्चंस आर हैविंग लेसर मार्क्स. आई एम वेरी हैप्पी. All are by the grace of Allah Rabbil Kareem. I'm a person who by myself is of 90 out of 90, and I'm a person whose students are of a 90 out of 90 in speaking section, and now our other sections are elevating beyond 80. क्लियर जी? गुजारिश में ये करना चाह रहा हूँ कि आप पीटीई को जितना ज्यादा समझ लेंगे उतना ज्यादा मार्क्स देना आसान होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन हैं, अगर 5 क्वेश्चन हैं स्पीकिंग के और उनके भी 90 मार्क्स हैं, और लिसनिंग के 8 क्वेश्चन हैं और उनके भी टोटल 90 मार्क्स है, तो एक ले मैन के लिए भी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ पीटीई आर नॉट ऑफ इक्वल मार्क्स. इसका मतलब ये हुआ कि ऑल क्वेश्चंस वुड नॉट बी इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल. यही बात है ना इसमें. अगर ऑल क्वेश्चंस आर नॉट हैविंग द इक्वल मार्क्स, तो फिर ये अंडरस्टूड है ना, ऑल क्वेश्चंस आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट एज वेल. इसका मतलब ये है कि वी हैव टू लुक पीटीई इनटू look into PTE not by the heart but the mind actually. आपको दिमाग से PTE को देखना, आपको दिल से PTE को नहीं देखना. If you will love PTE from the mind, that means that you will get more score. If you love PTE by heart, इसका मतलब है you are not going to take more score. तो आप उन वेन्यूज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा. अभी बात तो शुरू हुई है सिर्फ. तो हमने देखा कि PTE के सारे मार्क्स जो हैं वो बराबर, सारे क्वेश्चन के मार्क्स बराबर नहीं है. मगर एक हकीकत और भी है. वो हकीकत ये है कि पीटीई में हर एक सेक्शन के जो सवाल हैं वो अपने सेक्शन को कुछ नंबर देते हैं, और कुछ सेक्शन के नंबर और डिफरेंट एग्जाम से भी आ रहे होते हैं. मैं बात को रिवाइज करूं ताकि समझ आ जाए. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीटीई में 4 एग्जाम्स हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग.
इनके अपने क्वेश्चंस इन सारे सेक्शंस को 90 नंबर पूरे दे रहे हो, यानी कि स्पीकिंग के 5 क्वेश्चन स्पीकिंग को 90 नंबर दे दें, राइटिंग के 2 क्वेश्चंस राइटिंग को 90 नंबर दे दें, रीडिंग के 5 क्वेश्चंस रीडिंग को 90 नंबर दे दें, या आपके लिसनिंग के 8 क्वेश्चन लिसनिंग को 90 नंबर दे दें। ऐसा नहीं है, ऐसा सिर्फ स्पीकिंग के साथ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकिंग के 5 सवाल स्पीकिंग को 90 नंबर दे रहे हैं कंप्लीट, 90 मार्क्स देते हैं कंप्लीट, यानी कि मैं अब अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। सो योर PTE exam is of 20 questions and total 360 marks. Speaking exam is the first exam in PTE with a 4 of total. 4 में से पहला एग्जाम है, 5 questions and 90 इसके मार्क्स हैं, और ये 5 क्वेश्चंस 90 कंप्लीट करते हैं अपने स्पीकिंग एग्जाम का। सो ऑल क्वेश्चंस मेक टोटल 90 मार्क्स फॉर द स्पीकिंग एग्जाम। If we talk about the writing exam, 2 questions of writing exam give only 30 marks to writing, 30 marks to writing। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 marks to speaking। अपने सेक्शन को पूरे नंबर देते हैं ये 5 सवाल, लेकिन 90 मार्क्स कंप्लीट। बट जो राइटिंग के 2 क्वेश्चन है वो अपने सेक्शन को सिर्फ 30 मार्क्स दे रहे हैं। इसका मतलब है कि राइटिंग एग्जाम में 60 मार्क्स कहीं और से आ रहे हैं, इसका पता होना आपको जरूरी है। रीडिंग एग्जाम के जो 5 क्वेश्चंस हैं, ये रीडिंग को मैक्सिमम 45 से 50 मार्क्स दे रहे हैं। सो आगे चलिए, लिस्निंग के जो 8 क्वेश्चंस हैं, अनफॉर्चुनेटली ये अपने सेक्शन को अबाउट 50 टू 55 मार्क्स दे रहे हैं इन टोटल। तो PTE को समझना जरूरी है, सो दैट you people could batterly work in exam and could batterly take up and fetch up the marks in exam। okay, तो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। स्पीकिंग के 5 क्वेश्चंस के टोटल 90 नंबर्स पूरे मिलते हैं उसके सेक्शन को। राइटिंग के 2 क्वेश्चंस हैं, मगर वो अपने सेक्शन के लिए सिर्फ कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 30 मार्क्स। जो आपके रीडिंग का एग्जाम है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, और 5 क्वेश्चंस रीडिंग को कितने नंबर दे रहे हैं? 45 टू 50। लिसनिंग के 8 क्वेश्चंस हैं, और लिसनिंग के 8 क्वेश्चंस मिला के मैक्सिमम 50 टू 55 मार्क्स दे रहे हैं अपने सेक्शन को। इसका मतलब ये हो गया कि आपके स्पीकिंग सेक्शन में 5 क्वेश्चंस करने के बाद देयर इज -0, कोई क्वेश्चन कोई नंबर शॉर्ट नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट द राइटिंग एग्जाम, तो राइटिंग के 2 क्वेश्चन 30 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है राइटिंग इज एट -60। अब इस 60 को हमने कंप्लीट करना है कहीं से। आगे चलिए, रीडिंग के 5 सवाल हैं जो अपने सेक्शन को 50 मार्क्स दे रहे हैं मैक्सिमम। इसका मतलब है कि रीडिंग अपने 5 क्वेश्चन करने के बाद भी कहाँ पे खड़ा हुआ है? -40 पे। और जो लिसनिंग है वो अपने 8 क्वेश्चंस करने के बाद भी खड़ा हुआ है माइनस पे, और इसका जो माइनस है वो है इट्स अबाउट -45, -40, -40 और -35 to 40, सो -40। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं एक स्टेप और आगे चला गया। Speaking for 5 questions, all 90 marks of speaking are given by its own questions. Number 2, the writing exam, there are 2 questions, 30 मार्क्स देते हैं राइटिंग को, तो -60 पे खड़ा हुआ है आपका राइटिंग। आपका रीडिंग जो है उसके 5 क्वेश्चंस, उसको 50 नंबर दे रहे हैं, तो -40 पे खड़ा हुआ है रीडिंग। आपका जो लिसनिंग के 8 क्वेश्चन है वो लिसनिंग को सिर्फ 50 टू 55 मार्क्स देते हैं। इसका मतलब है कि तकरीबन आपका लिसनिंग भी -40 पे खड़ा हुआ है। ओके, आई मीन 40 को पूरा कर रहा हूँ। सो योर रीडिंग एग्जाम, सॉरी रीडिंग एग्जाम की बात कर रहा हूँ, आपका जो स्पीकिंग एग्जाम है, आपका स्पीकिंग एग्जाम डज नॉट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पीपल फॉर एक्सटर्नल एग्जाम्स रादर। आपका राइटिंग एग्जाम को भी 60 मार्क्स चाहिए हैं एक्सटर्नल क्वेश्चन से या एक्सटर्नल एग्जाम से। आपके रीडिंग को भी 40 नंबर चाहिए हैं नॉन रीडिंग क्वेश्चन से, और आपके लिसनिंग को भी 40 मार्क्स चाहिए हैं अगर उसने अपने 90 कंप्लीट करने हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये नंबर कहाँ से आएंगे? स्पीकिंग को तो ये नंबर चाहिए नहीं, स्पीकिंग को तो ये नंबर चाहिए नहीं, फिर आएंगे कहाँ से बाकियों के? इट इज टू बी अंडरस्टूड नाउ, और अब इसको ध्यान से देखिएगा। राइटिंग के एग्जाम में, राइटिंग के एग्जाम में आपके राइटिंग के -60 हैं। इन -60 में से जो लिसनिंग का कंट्रीब्यूशन है, लिसनिंग गिव्स, लिसनिंग गिव्स, लिसनिंग गिव्स -60 पे है। लिसनिंग गिव्स about 36 marks to writing. Is it clear or not? Listening gives how much marks? 36 to writing.
And number two, your reading exam, it gives writing about 22 marks. And नंबर टू, सो ये दो एग्जाम्स हैं जो अब टोटल पूरा कर रहे हैं 90 का। इसका मतलब हुआ कि राइटिंग के अंदर कितने क्वेश्चन हुए, दो क्वेश्चन से कितने नंबर हुए, 30। और अब 90 पूरा करने के लिए लिसनिंग का एग्जाम तकरीबन 35 टू 36 मार्क्स दे रहा है। किसको? आपके राइटिंग के एग्जाम को। और आपका जो एग्जाम है रीडिंग का, वो भी कितने नंबर दे रहा है, 22 टू सॉरी अबाउट 20 टू 22 वो भी दे रहा है। इज इट फाइन और नॉट? सो इस तरह से आपका जो राइटिंग का टोटल 90 है वो कैसे पूरा हो रहा है? आपका राइटिंग का 90 पूरा हो रहा है बाय द सपोर्ट ऑफ द लिसनिंग एग्जाम एंड बाय द सपोर्ट ऑफ रीडिंग एग्जाम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम को नंबर नहीं दे रहे। फिर एक बात डिफरेंट कर रहा हूं, जो आपके पीटीई के क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अपने, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपने सेक्शन को भी नंबर दे रहे हैं और दूसरे सेक्शंस को भी नंबर दे रहे हैं। इसीलिए फिर सारे क्वेश्चंस की अहमियत एक जैसी नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस वुड बी मोर इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे विच आर नॉट ओनली गिविंग द नंबर्स टू देयर ओन सेक्शन बट दे आर गिविंग द नंबर्स टू द अदर सेक्शन एज वेल। इज इट फाइन? आगे चलिए। रीडिंग के एग्जाम के नंबर्स हैं -40, अभी भी 40 कम है। ये 40 कहाँ से आते हैं? इसको राइटिंग एग्जाम के जो क्वेश्चन है, राइटिंग एग्जाम इसको दे रहा है, राइटिंग एग्जाम इसको दे रहा है ऑलमोस्ट 10 नंबर्स रीडिंग को, और ऑलमोस्ट 10 नंबर्स दे रहा है रीडिंग को, और अबाउट 30 मार्क्स दे रहा है रीडिंग को। आपका स्पीकिंग, आपका स्पीकिंग एग्जाम, आपका स्पीकिंग एग्जाम इज गोइंग टू गिव यू, इज गोइंग टू गिव 30 मार्क्स टू योर रीडिंग एग्जाम। सो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, रीडिंग से आपका स्पीकिंग तकरीबन 30 मार्क्स दे रहा है, 10 मार्क्स आप तकरीबन राइटिंग एग्जाम दे रहे हैं, और तकरीबन 5 to 10 मार्क्स आपका लिस्निंग एग्जाम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लिस्निंग दे रहा है रीडिंग को, लिस्टिंग दे रहा है रीडिंग एग्जाम को अबाउट 8 to 10 मार्क्स, हम 10 लिखते हैं तो दिस आर लाइट बाइफरकेशन, 10 मार्क्स प्लस माइनस हो रहे हैं। तो कभी अगर लिस्निंग के रीडिंग के 45 इंटरनल 5 क्वेश्चंस के होंगे तो मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से इसके 90 मार्क्स पूरे हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 आर बीन गिवन बाय द राइटिंग एग्जाम, ऑलमोस्ट 30 आर बीन गिवन बाय द स्पीकिंग एग्जाम, एंड ऑलमोस्ट तकरीबन 10 मार्क्स हैव बीन गिवन बाय द लिस्निंग एग्जाम। तो इस तरह से आपके रीडिंग के 90 मार्क्स पूरे होते हैं। कम ऑन द लिस्निंग एग्जाम, लिस्टिंग तो खड़ा हुआ है 55 पे, तकरीबन 50 to 55, -40 पे है। ये -40 कहाँ से आएंगे? ये -40 आएंगे स्पीकिंग एग्जाम से। ये सारे के सारे नंबर कहाँ से आ रहे हैं? स्पीकिंग एग्जाम से। तो स्पीकिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स लिस्टिंग, एंड स्पीकिंग इज कंट्रीब्यूटिंग इज अबाउट 25 to 30 मार्क्स वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके लिस्टिंग के एग्जाम में, और इस तरह से इसके 90 मार्क्स पूरे होते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट आपकी पीटीई इज अ गेम ऑफ टोटल 20 क्वेश्चंस। इसमें 4 सेक्शंस हैं। नंबर 1 स्पीकिंग 5 क्वेश्चंस, नंबर 2 राइटिंग 2 क्वेश्चंस, नंबर 3 रीडिंग 5 क्वेश्चंस, नंबर 4 लिस्टिंग 8 क्वेश्चंस। स्पीकिंग के 90 मार्क्स हैं, रीडिंग के भी 90 मार्क्स हैं, राइटिंग के भी 90 मार्क्स हैं, लिस्टिंग के भी 90 मार्क्स हैं। अब जो स्पीकिंग के 90 मार्क्स हैं, वो 90 मार्क्स सारे के सारे कौन पूरे कर रहे हैं? वो सारे के सारे मार्क्स उसके अपने 5 क्वेश्चंस पूरे कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं राइटिंग की, तो उसके अपने 2 क्वेश्चन सिर्फ 30 मार्क्स पूरे कर रहे हैं। जो बाकी 60 हैं वो लिस्निंग और रीडिंग एग्जाम की कंट्रीब्यूशन से पूरे होते हैं। एंड देन रीडिंग के अपने 5 क्वेश्चन तकरीबन 45 to 50 मार्क्स देते हैं। राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिस्निंग 90 मार्क्स का फिगर पूरा कर रहे हैं रीडिंग का। लिस्निंग के 8 क्वेश्चन तकरीबन 55 मार्क्स के करीब देते हैं, और जो तकरीबन आपके deficiency है that is given by the speaking exam. So it is what the whole structure the PTE, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि PTE में याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस की वजन ज्यादा, कुछ क्वेश्चंस के मार्क्स ज्यादा, कुछ का कम फोकस इस पे करना है जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मॉड्यूल को पेपर नंबर नहीं दे रहे बल्कि वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को भी नंबर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक इनटू द क्वेश्चंस जो कि सिर्फ अपने को नहीं बल्कि दूसरे सेक्शंस को भी नंबर दे रहे हैं। दोस क्वेश्चंस शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी। इज इट फाइन नाउ? सो नाउ पीटीई में मैं रिकॉल यहाँ पे मैंने कर दिया, और मेरे ख्याल में चीजें खासी क्लियर हो गई होंगी। सो इफ इट इज क्लियर तो मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूँ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप जिस पे मैं जाऊंगा अभी? सो नाउ सो पीटीई में
अगेन सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रात में आपको पहुंच जाएगा। अब मैं इंडिविजुअल एग्जाम के टाइमिंग की बात करने वाला हूँ। सो उसको जरा फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन उसमें भी ना रहे। फिर मैं हर सेक्शन के क्वेश्चंस की तरफ चला चाहूंगा। सो नाउ आपका स्पीकिंग एग्जाम जिसके 5 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है। ये और आपका राइटिंग एग्जाम, ये एक सिंगल एग्जाम की सूरत में एग्जाम में आएगा। सो एग्जाम के अगर आप टोटल की बात करें तो पीटीई में कितने एग्जाम्स है? टोटल 4। नंबर 1 स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। मगर एग्जाम में मॉड्यूल बने हुए होंगे 4 एग्जाम्स के 3। पहला मॉड्यूल होगा स्पीकिंग प्लस राइटिंग, दूसरा मॉड्यूल होगा फॉर एग्जाम्पल रीडिंग का, और तीसरा किसका होगा? लिसनिंग का। सो एग्जाम में सेक्शंस कितने होंगे? एग्जाम में सेक्शन तो 4 ही हैं, लेकिन मॉड्यूल कितने होंगे? 3। एक मॉड्यूल होगा स्पीकिंग प्लस राइटिंग, एक होगा रीडिंग, एक होगा लिसनिंग। जब हम बात करते हैं पहले मॉड्यूल की, एग्जाम 1, इट इज कंबाइन ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग। ड्यूरेशन इज 1 hour to 1 hour 10 minutes and there will be 7 questions। कौन कौन से? 5 स्पीकिंग के, 2 writing के। Is it clear जी? So reading exam is exam number 2. The exam duration is 29 to 30 minutes and it is for the 5 questions only. Listening exam is of 8 questions and for listening the time will vary between 30 minutes to 35 minutes। तो इस तरह हर एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के नंबर इन एग्जाम और नंबर भी डिफरेंट है और हर एग्जाम की ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। सबसे ज्यादा 1 hour 10 minutes के करीब टाइम मिलेगा किसको? स्पीकिंग एंड राइटिंग को। फिर तकरीबन आधे आधे घंटे का वक्त होगा किसके लिए? आपकी रीडिंग के लिए और आपके लिसनिंग के क्वेश्चन के लिए। इज इट फाइन? यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए और फिर मैं इससे एक कदम आगे चला जाऊंगा और फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को जो आपको पता होनी। Now we are moving ahead to the questions, and the questions, rather the questions bifurcation by the virtue of their numbers. So I'm going to display a spreadsheet, and this specific spreadsheet will be an information for you that कैसे numbers PTE के question wise divide हुए हैं, और फिर मैं उससे अगले step में जाके हर section के सवाल का नाम क्या है उसको फिर मैं अलग अलग से discuss करूंगा। So it is what the score distribution guide of the PTE exam। एंड इस स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन गाइड पे जो पीटीई एग्जाम की है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, इस स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन शीट को देखिए तो दीज आर द 20 क्वेश्चंस यहाँ से लेके यहाँ तक जिनका ताल्लुक डिफरेंट सेक्शंस मींस 4 सेक्शन से है। नंबर 1 कौन सा? राइटिंग। नंबर 2 स्पीकिंग। नंबर 3 रीडिंग। नंबर 4 लिसनिंग। सो पीटीई का जो हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन है उसका नाम है repeat sentence and then write from dictation and reading writing fill in the blanks and read aloud। पीटीई को करने वालों को इस बात का पता होना चाहिए, सिर्फ टॉप के ये सवाल पीटीई करने वालों को पता होना चाहिए। टॉप के 4 क्वेश्चंस जो हैं ये आपको दे रहे हैं अबाउट 200 मार्क्स आउट ऑफ 360। मेरे ख्याल में सारी बात समझ आ गई होगी लिसनर्स को। ये 4 सवाल आपको दे रहे हैं 200 नंबर, ऑलमोस्ट 200 मार्क्स आउट ऑफ 360। अगर आप इनमें मजीद 1 2 3 4 5 6 7 मजीद क्वेश्चंस मिला लें, 7 मजीद ऐड अप कर लें, एंड इफ यू ऐड 4 into 7 makes how many? 11 questions। These 11 questions give you about 325 marks out of 360। And if you move ahead further and you add 3 more questions into it, इसमें 3 questions और ऐड कर देते हैं and you go for now total 14 number of questions। These 14 questions will be contributing 350 marks out of 360। And so if you go for the complete 20 marks, these complete 20 marks are now going to give you 360 out of 360 in total। So I hope I am clear। So if a student is concentrating well on the first 11 questions, he can very easily work on 325 marks in PTE exam। That means that he will be very able, he will be very able to cross 80 mark out of 90 total in overall score if he is strong in the first 11 questions of the exam of PTE। So I hope a small bifurcation would be giving some more mental peace and the more concentrated approach that how you should approach to PTE exam overall। So we are not to approach PTE emotionally। हमें PTE इमोशनली नहीं अप्रोच करना, हमें वाइजली अप्रोच करना है। And we think wisely, PTE's first 4 questions are giving 200 out of 360,
PTE के highest number of 11 highest marks questions are going to contribute 325 out of 60, and 14 questions are contributing 350 out of 360, and then onward अगर आप उसमें 6 और भी ऐड कर लें तो फिर आप होते हैं 360। का मतलब ये है कि these all 6 questions are last 6 questions जो मैंने इस ग्रिड पे रखे हुए हैं, these 6 questions are having almost 10 marks in total. So how much time we should give them? Their marks are very clearly and openly speaking. So it is known as a bifurcation list of the all 20 questions of PTE. So these all 20 questions, as I've already informed you people, are bifurcated into 4 exams. Number 1 was your speaking exam, number 2 was your writing, and 3 reading, and 4 listening. So now it is the speaking exam now in front of you. Your speaking exam is of 5 questions that I have already told you people. The first question that what we need to meet in the speaking exam is read aloud. Read aloud में हमें दिया क्या होता है एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को हमने क्लियरली एंड लाउडली रिपीट करना है। कैसे? कल से यही सवाल शुरू होगा और इंशाल्लाह इसमें शुरू करूंगा। This question is having 44 marks in total, and out of the 44 marks, 22 marks are going to speaking exam and 22 marks are going to the reading exam, because 2 skills are being tested. पढ़ेंगे तो बोलेंगे ना। So to this the marks, it is what I was saying that speaking के 5 सवाल 90 अपने आप को भी दे रहे हैं और बाकियों को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ आ रही होगी how they are contributing. Second question is known as repeat the sentence. Repeat the sentence is the highest marks question of the whole PTE exam. This one question contains more than 50 marks, 52, 53 marks in सवाल के। 32 marks go toward your speaking exam, and 19.7 means almost 20 marks go to your listening. Describe image is the third question of PTE exam, and there are 22 marks of describe image. All marks go to speaking exam. Retell the lecture, give you 11 numbers for the speaking, and it contributes almost 10 number to your listening exam. Answer the short question is the 5th and the last question of speaking exam. इसके total almost marks बनते हैं 10, और इन 10 में से तकरीबन 2.5 marks are coming to your speaking exam, and 6.6 marks go to your listening. In nutshell, your speaking exam on 8 questions give 90 marks to speaking. These give 36 marks to listening, and the same 5 questions are giving 22 marks to your reading exam. So in this way, 5 questions of PTE speaking exam are going to give 90 plus 22. It makes 112 plus this one 150 marks out of 360 are contributed by 5 questions of your PTE speaking exam. If you're stronger in speaking, and if you can chase 90 out of 19 speaking exam, believe me, your overall score can never be back then or stay down than the 70 score. जिसका speaking strong है वो अगर speaking में 90 marks ले लेता है तो PTE का overall score 70 से नीचे नहीं रुकता अगर उसके बाकी सारे module average भी हों. So if you ask me, Sazishan, कितनी energy लगानी चाहिए PTE पे, तो I say out of 100, 50% energy must be spent upon your speaking exam uplift, and then baki 50% of all 3 sections which are remaining in PTE. So now the first section is speaking, and I have informed you kitne question hai total beta. There are total 5 questions, and these 5 questions are giving how many marks? These are 5 questions which are giving 90 marks to your speaking, and then 22 marks to your reading, and then 36 marks to your listening exam. So it is the bifurcation of the whole exam of PTE when we talk about PTE speaking. So now second exam is of the writing. Writing exam, there are 2 questions in total that I've already informed you people. The first question is known as summarize the written text, and the second question is known as the essay writing. So now these 2 questions are giving the first question, summarize the written 10 marks. It is contributing to your writing exam, and 10 marks they are contributing to your reading exam. Essay is of only 11.2 numbers, means total 11 marks. All marks have been contributed by essay to the writing only. अब reading section से यहाँ पे आ रहे हैं 22 marks, and then your listening section is giving 46 marks. तो इस तरह से writing के 90 कैसे पूरे हो रहे हैं? अपने questions के मैंने बोला था 30, and बाकी आ रहे हैं कहाँ से? reading and listening से, तो 90 बन रहे हैं। और जो आपके राइटिंग के अपने 2 सवाल हैं, वो 2 सवाल कितने नंबर दे रहे हैं? टोटल 10 नंबर्स किसको दे रहे हैं? रीडिंग एग्जाम को। ये पहला सवाल है, मैंने बोला था राइट फ्रॉम
सॉरी समराइज द रिटन टेक्स्ट, ये दे रहा है 10 नंबर रीडिंग में। सो आपके राइटिंग के जो पोर्शन के 2 सवाल हैं वो राइटिंग को दे रहे हैं 30 और दे रहे हैं रीडिंग को 10। बाकी सारे नंबर जो हैं 22 एंड 46 आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द रीडिंग एग्जाम एंड द लिसनिंग एग्जाम। तो खासा ज्यादा आउटर डिपेंडेंट मॉड्यूल है आपके राइटिंग के एग्जाम का। इसका मतलब है कि जिसकी लिसनिंग तगड़ी तरह देखिएगा, इक्वेशन बनाने को इक्वेशन बनाइएगा, जरा खुद से इक्वेशन बनाइएगा ताकि आपको पीटी ठीक समझ आ जाए। जरा गौर से देखिएगा, ये स्पीकिंग एग्जाम है, मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। जिसका स्पीकिंग स्ट्रांग है उसका लिसनिंग खुद ब खुद उठ जाएगा, यस और नो। जिसका स्पीकिंग स्ट्रांग है उसका लिसनिंग खुद से ही उठ जाएगा। इज इट डन? अब जिसका लिसनिंग स्ट्रांग है, ये देखिएगा जरा, जिसका लिसनिंग स्ट्रांग है, जरा इसको देखिएगा, जिसका लिसनिंग स्ट्रांग है उसका 46 मार्क्स दे रहा है लिसनिंग राइटिंग को। जिसका लिसनिंग स्ट्रांग है उसका राइटिंग ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। सो स्पीकिंग स्ट्रांग है तो लिसनिंग स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर लिसनिंग स्ट्रांग है तो राइटिंग स्ट्रांग हो जाएगा। मेरे ख्याल में मैं समझा पाया हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर इसका मतलब है कि किसी के अगर स्पीकिंग के नंबर हाई है तो उसके लिसनिंग के नंबर भी हाई होंगे, और अगर उसके लिसनिंग के नंबर भी हाई हैं तो ऑटोमेटिकली राइटिंग के नंबर भी ऊपर चले जाएंगे। इज इट डन और नॉट? सो इसको हमने इस तरह से देखना है। The third question, the third module exam is that I've informed already. It is the reading exam. If we talk about a reading exam, in reading there are 5 questions. The first question is known as drag, drop, fill in the blanks. 14 marks in total in exam. Fill in the blanks which are known as drop down. इनके total marks हैं almost 44. PTE का third highest mark question है, 44 number है इसके। इनमें से in 44 में से 22 marks are going for the reading exam and 22 marks are going for the writing exam. And then come on, reorder the paragraph. In reorder the paragraph, the total marks are 5.8. All marks are going to your reading exam, and then there are 2 MCQs. MCQs with a double answer, MCQ with a single answer. So if you talk about MCQ with a single answer, there is only 1.5 marks, and double answer इसके नंबर हैं कितने आपके 3। यहाँ तक अगर मैं इसको इकट्ठा कर लूँ तो ऑलमोस्ट आपके 45 to 50 मार्क्स हैं जो अपने 5 क्वेश्चंस के होंगे। So now for reading, speaking section कितने नंबर दे रहा है 22, राइटिंग सेक्शन कितने नंबर दे रहा है 10, और लिसनिंग सेक्शन भी कितने नंबर दे रहा है आपको 10। और इस तरह से आपके टोटल एक्सटर्नल मार्क्स का सपोर्ट मिल रहा है इसको 43 नंबर्स का, एंड ऑलमोस्ट 47 मार्क्स इसके अपने क्वेश्चंस के मिला के टोटल कितने हो गए 90। सो रीडिंग अपने क्वेश्चंस और बाहर से जो अमदाद दे रहा है उसको मिला के बनाता है 90, और जो कंट्रीब्यूट कर रहा है बाहर को वो कितने हैं 22, और वो किसको जा रहे हैं आपके राइटिंग एग्जाम को इस क्वेश्चन के, विच इज नोन एज reading, writing, fill in the, yes, it is reading, writing, fill in the blanks, जो कहते हैं drag down. Is it clear? So total 5 questions are giving 45 to 47 number to the whole reading exam, and the rest of 42 3 marks are given by all 3 sections. Speaking is contributing the highest 22 in your reading, and then writing and listening both are contributing about 10 each, और इस तरह से आपके total 90 marks बन रहे हैं reading के exam. Move ahead to the last question. And the last module of PTE, or the last exam, it is known as the listening exam. The first question of listening is known as summarize the spoken text. Number 1, इसके total marks बनते हैं almost 24 marks जो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। 13 marks जाएंगे listening में और 12 marks जाएंगे आपके writing के exam में। So there are multiple choice question with the multiple answers. 2.5 marks हैं सारे listening को जा रहे हैं। Fill in the blanks are having almost 15 marks, और ये 15 मार्क्स हैं उनमें से 6.6 जा रहे हैं आपके लिसनिंग को और 7.4 जा रहे हैं आपके राइटिंग एग्जाम में। हाईलाइट द करेक्ट समरी, इसके नंबर हैं टोटल 3। 1.3 मार्क्स आर गोइंग फॉर योर लिसनिंग, 1.5 मार्क्स आर गोइंग फॉर रीडिंग। आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सिंगल आंसर, सिर्फ उनका 1 नंबर है, ऑलमोस्ट सारा लिसनिंग को जा रहा है। सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड, अगेन इसका 1 नंबर और सारा जा रहा है लिसनिंग को। हाईलाइट द इनकरेक्ट वर्ड, इट इज व्हाट इज हैविंग अबाउट 17 नंबर्स। 8 जा रहे हैं ऑलमोस्ट किसको, 8 जा रहे हैं आपके लिसनिंग को, और तकरीबन 9 जा रहे हैं आपके रीडिंग को। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज हैविंग, इट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द होल पीटीई एग्जाम। इसके टोटल मार्क्स जो बनते हैं दोज आर ऑलमोस्ट 47 48, उनमें से ऑलमोस्ट 20 जा रहे हैं कहाँ पे आपके लिसनिंग के एग्जाम में, एंड 26.8 आर गोइंग फॉर योर राइटिंग एग्जाम। तो ओवरऑल लिसनिंग के जो सेक्शन है उसके ये सारे के सारे 8 के 8 सवाल मिला के इसको 50 से 50 मार्क्स दे रहे हैं, 55 मार्क्स दे रहे हैं, ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहे हैं। तो फिर टोटल 90 कैसे पूरे होंगे? आपका स्पीकिंग का सेक्शन दे रहा है लिसनिंग को कितने मार्क्स, 36 मार्क्स। इट इज व्हाट आई वाज सेइंग इन द स्टार्ट, स्ट्रॉन्गर स्पीकिंग, upper will be the listening, upper is listening,
higher will be the writing. ये बात याद रखिएगा. Is it done or not? So it is what the total bifurcation of the 20 questions of your whole PTE exam, and it is what the internal arrangement and the bifurcation of marks. इनको याद रखने का तरीका एक तो ये है कि हम इन सारे के सारे इन 5 स्लाइड्स को संभालना है. लेकिन अगर हम इन 5 स्लाइड्स को नहीं संभालना चाहते तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको रात को एक पास कार्ड सीरीज आ जाएगी. मैंने जो लिखा है ये भी आपके लिए है, ये रात को आ जाएगा. रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपका है, वो भी आपको आ जाएगा आज रात को. द रिकॉर्डिंग दैट आई एम मेकिंग, दिस विल बी विद यू इंशाल्लाह इन द इवनिंग, इन द नाइट. ओके, ये भी रात को आपको पहुंच जाएगी. सो नाउ देयर इज अनदर पास कार्ड सीरीज. वो पास कार्ड सीरीज जो है दैट विल हेल्प यू आउट. और उस पास कार्ड सीरीज को अगर आप अपनी एल्बम मोबाइल की बना के रख लेते हैं, उस एल्बम में रखने से आप इसको किसी वक्त भी किसी क्वेश्चन को रिकॉल कर सकते हैं. आपको पूरी शीट को देखना नहीं पड़ेगा. Now, if you see this pass card series, all pass cards of all 4 exams will be sent in the evening. आज शाम को सारे के सारे पहुंच जाएंगे रात में. I mean, if you see this pass card, for an example, it is a pass card for the listening exam. There are 8 questions. सारे questions यहाँ पे लिखे हुए हैं. आप जब next pass card पे जाएंगे, it is pass card number 2 and it's a fill in the blank. कितने exam में question है 2, कितने marks होंगे total exam में इस specific question के जहाँ पे लिखे हुए 2 question 14 marks, 7 listening, 7 writing. इस तरह से ये pass cards have been developed and all pass cards will be sent in the evening. If you see the pass card number for the highlight the incorrect word, how many questions in exam 2, how many marks will be 3, date कहाँ चले जाएंगे, 1.5 mark will be going towards your listening exam, 1.5 will go towards your reading exam. The next question is highlight the incorrect word, HIW. How many questions in exam 2, how many numbers, 17, 8 to listening, 9 to reading. Next pass card is for the next question. It is MCQ with single answer. There is only 1.5 marks. All 1.5 are going to a listening exam. The next one is highlight the missing word. It's about a 2 question in exam. 1.3 marks are for the whole question and all marks will be going for your listening. And the next question is the summarize the spoken text. 2 questions will be there in exam and 25 marks will be there. 13 marks will be going for your listening. 12 marks will be going for your writing exam. Right from dictation, the 8th question. How many questions will be there? 3 only. And how many marks will be there? 46. 20 marks will go towards your listening. 26 marks will go towards your writing. It is what the overall pass card series schedule. रात में मैं इन पास कार्ड्स को जो लिसनिंग के, स्पीकिंग के, रीडिंग के और राइटिंग के अलग अलग डेवलप हुए मैं भिजवा दूंगा. आपने इनको अपने पास मोबाइल में एल्बम्स बना के रखना है. एक एल्बम होगा पीटीई लिसनिंग, एक एल्बम होगा पीटीई राइटिंग, एक एल्बम होगा पीटीई स्पीकिंग, एक एल्बम होगा पीटीई राइटिंग. सो आपने पीटीई स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग के अलग अलग बना लेने हैं एल्बम्स और उनके अंदर इन पास कार्ड्स को रख लेना है ताकि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो और किसी को अचानक से ज़हन में ये बात आती है कि हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर इन माय एसे राइटिंग क्वेश्चन, आप फौरन से खोलेंगे राइटिंग की एल्बम खोलेंगे और उसके अंदर उसका पास कार्ड देख लेंगे एंड यू विल मेक योर माइंड क्लियर विद हाउ मेनी क्वेश्चन विद इन एन एग्जाम. सो इट इज व्हाट दी पास कार्ड सीरीज, ये भी शाम को आपको आ जाएंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव इन द इवनिंग.